Hello viewers, Assalamu alaikum to everyone. During this meeting, I'm going to discuss some basic terminologies related with management and the organization and some aspects of the sense making. And this relates to the chapter number 2 and the chapter number 2 which has been taken from the Managing an Organization book called Steward. So let me share some slides with you. Okay, this chapter is about the managing sense making. And learning objectives are introduction, the individuals in chain, organizing individuals, managing and manager, organization, sense making, and then framing rationality. And why are managerialist assumptions of rationality influential? So after completing this topic, you will be able to appreciate many of the meanings behind the words managing and organization and explain the relationship between managing and organization. Understand why individuals and groups within organization can be a challenge to manage and that managing is a difficult job to do well. Identify the impact that changes in the contemporary world are having on managing and explain how traditional conception of organization and management entails issue of identity, hierarchy, and rationality. And explain why rationality is less rational than it seems. So I'm going to be a bilingual in this presentation. उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ ताकि जो हमारे व्यूअर्स जो हैं उर्दू का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं उनसे उर्दू में भी बात की जाएगी और साथ साथ अंग्रेज़ी में भी बात की जाएगी ताकि बात जो है मुकम्मल आप तक पहुँच जाए. So first of all, introduction is Individuals in Chain. Man is born free but everywhere is in chain by Rosio. And Rosio is famous for having written shortly before the French Revolution that man is born free but everywhere is in chains. और it's in प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस जिसमें उसने ये बात की थी. और तो उस हवाले से ऑर्गेनाइजेशन का रोल अगर आप देखें तो ऑर्गेनाइजेशन शेप आवर लाइव्स एंड आवर आइडेंटिटीज ऑल द वे फ्रॉम आवर बर्थ टू आवर डेथ. तो आप किसी अस्पताल में पैदा होते हैं और हैविंग वन पर्टिकुलर ऑफ बर्थ एंटर इनटू द बर्थ सर्टिफिकेट्स, फिर उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट्स बनते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, फिर डेथ सर्टिफिकेट बनते हैं. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बर्थ की, मैरिज की, डेथ की, इंसान की पूरी ज़िंदगी के ऊपर इनका जो है वो ट्रैक रखते हैं, उसका रिकॉर्ड रखते हैं. Then similarly, like you enrolled in the school is also an organization. Then you work in the organization for a salary, for the compensation, even if you're starting your own organization. All the way from our birth to our death, organization जो है वो हमारी लाइफ को जो है वो इफेक्ट कर रही होती है. तो almost every aspect of our life and indeed our death will be shared by the organization of one kind or the another. And so even if you have experienced different kind of the organization in your own life, and you can see that how that organizations are affecting your life. So there is you might consider that there are different kind of the organization. One is private organization, another is a public organization, and they are different, collecting a different kind of statistics from the different kind of the people. And but some scholars do not stick to that view that public organization and the private organizations are different. They stick to the view that the more important thing is that organization has certain kind of common structures, commonality between. There are certain kind of the commonality between the public organization and the private organization and the charitable organization, and they are more similar and analogous. Analogous means that's kind of a similar unit, which are called as the organization. So Patricia Bromley and the W. Meyer 2014 article, they are all organization, in which they have discussed about that all sectors like public, private, and non-governmental sector or charities are merging in some way. They are
quite some commonality between these organizations. Now, organizing individuals. So identity is a one important concept in the organization, and identity is a way a person constructs, interprets and understand who they are in relation to others in their life. ओके जी, आइडेंटिटी जो है से मुराद ये है कि किस तरह इंसान जो है वो अपने बारे में क्या शनाख्त अपनी रखता है। आइडेंटिटी का वर्ड उर्दू में शनाख्त के ज़मरे में आता है। क्या अपने बारे में सोचता है, किस तरीके से उसकी आइडेंटिटी डेवलप हुई है, अपने मुख्तलिफ माहौल के मुताबिक किस तरीके से डेवलप हुई है, और हु ही इज़ इन रिलेशन टू द अदर्स। और आइडेंटिटी जो है कुछ जगहों पर स्टेबल होती है, कुछ जगहों पर आइडेंटिटी जो है वो डायनामिक है, डेवलपमेंट के फेजेस से गुजरती है। समटाइम मोर और लेस फ्रेगमेंटेड, मोर और लेस प्रॉब्लमेटिक और मोर और लेस सिक्योर। कुछ पर्सनल आइडेंटिटीज जो कि कुछ स्पेस में हम बड़े स्टेबल समझते हैं, कुछ अदर स्पेस के अंदर वो पर्सनल आइडेंटिटीज बड़ी अनस्टेबल हो जाती हैं। और जो आइडेंटिटी हमारे वर्क प्लेस पे होती है वो आइडेंटिटी हमारे स्पोर्ट्स के ऊपर या एंटरटेनमेंट जब हम करते हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट भी होती है। दैट मीन्स कि हमारी वी हैव अ मल्टीपल आइडेंटिटीज, हमारी मल्टीपल आइडेंटिटीज होती हैं। और एक हम कहते हैं, शेक्सपियर की बात कहते हैं कि वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर ऑल एक्टर्स, और हम इस हवाले से अपने मुख्तलिफ रोल्स प्ले कर रहे होते हैं। लाइक सिबलिंग का रोल है, लाइक शादीशुदा लोग हैं उनका पेरेंट्स का रोल है, स्पाउस का रोल है, और फिर आप मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, उस हवाले से उन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं तो उस हवाले से भी आपका रोल है उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो इसका मतलब ये है कि हमारा आइडेंटिटी इज नॉट फिक्स एंड फ्लूइड एंड डेवलप्ड फ्रॉम विद इन द जेनेटिक इनहेरिटेंस एंड दैट डिफाइंस आवर यूनिकनेस। हमारी एक जेनेटिक अपीयरेंस है, और फिर हमारे एक्सरसाइज है, डाइट है, स्टाइलिंग है, एजिंग है, और ये हमारी सर्जरी है, ये भी हमारी आइडेंटिटी को, फिजिकल आइडेंटिटी को चेंज करती है। एक हमारी डेफिनेट पर्सनैलिटी होती है, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की वजह से वो भी रीशेप हो जाती है क्वाइट ड्रामेटिकली। भारत तो व्हेन वी बिकम ऑर्गेनाइजेशन मेंबर वी सरेंडर सम ऑफ आवर ऑटोनॉमी टू द कंट्रोल ऑफ द अदर, सच एज सुपरवाइजर, मैनेजर, बॉसेस, and to other things such as schedules, machines, routines and deadline। तो इसका मतलब जब आप ऑर्गेनाइजेशन मेंबर बनते हैं तो अपनी कुछ आइडेंटिटी को सरेंडर करते हैं, कुछ ऑटोनॉमी जो आइडेंटिटी से रिलेट है उसको आप सरेंडर करते हैं। आप कुछ रूटीन्स को फॉलो करते हैं, कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, क्लासों में टाइम पे आना, टाइम तक रहना और रूल्स को फॉलो करना, ये सारी की सारी जब आप इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनता है तो उन चीज़ों को फॉलो करना होता है। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडिविजुअल के बिहेवियर को ऑर्गेनाइज करती हैं। ओके, ओके जी, मैनेजिंग एंड मैनेजर, ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं। मैनेजर कौन होते हैं, मैनेजिंग क्या होती है, मैनेजर्स क्या करते हैं। पहली बात, एक टर्मिनोलॉजी है फ्रेमिंग मैनेजिंग। तो फ्रेमिंग मैनेजिंग से मुराद है, फ्रेम इज अ टर्म that come from the cinema. A director frames a shot by including some detail and omitting other details, and the frame define what is relevant। कि क्या चीज़ रेलेवेंट है। जितना डायरेक्टर एक कट ले रहा होता है तो जो कैमरा जहाँ होता है वो उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करता है जो कि उसके लिए रेलेवेंट होती है। इस तरह मैनेजर भी जो होता है, इट्स ऑल द टाइम मैनेजिंग इज इन्वॉल्व फ्रेमिंग। दैट मीन्स सेपरेटिंग दैट विच डिजर्व फोकस फ्रॉम दैट विच डज नॉट। And one thing that the managers have to do all the time is to differentiate between the relevant and the irrelevant. So जिस तरह इस बुक के अंदर भी उन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है जो कि ऑथर्स के नज़दीक जो है वो रेलेवेंट है मैनेजिंग और ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। और हम वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टर्म, मैनेजिंग एज प्रैक्टिस, दैट समथिंग दैट वी डू, एंड ऑर्गेनाइजेशन एज अ goal oriented collectivities in which we are organized. Managing is an activity which we do, and organizations are in which we are organized, those kind of entities. So organized, what do we mean by organized? Means being an element in a systematic arrangement of parts that creating a certain
यूनिफाइड ऑर्गेनिक होल, यानी एक ऐसा होल सेटअप बन रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है रोल्स की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बन रही है। और मैनेजमेंट से क्या मुराद है? मैनेजमेंट से हमारी मुराद है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग, coordinating and accomplishing action in the pursuit of organization objective while managing relationship with stakeholders, technologies and other artifacts both within as well as between organization। तो ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपकी बुक में दी गई है, पेज नंबर है बुक का 21, where you can write that the management is the process of communicating, coordinating and accomplishing action in the pursuit of organization objective while managing relationship with stakeholder, technologies and other artifacts, so both within as well as between organization। ये सारा प्रोसेस मैनेजर से गुजरते हैं, कम्युनिकेशन के, कोऑर्डिनेटिंग के और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। और मैनेजर्स क्या काम करते हैं? व्हाट मैनेजर्स डू दैट दे कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनली फॉर्मल गोल। मैनेजर जो है फॉर्मल गोल को अचीव करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ने डिटरमिन करती है। दे प्लान, डिजाइन and systematically arrange those framework where they can relate people, things, knowledge and technologies, and the purpose is to achieve a specific goal। तो मैनेजमेंट की जब हम डेफिनेशन करते हैं तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन जैसा मैंने अभी शुरू में आपको बताई, आगे भी कुछ डेफिनेशन मैं आपको मैनेजमेंट की बताऊंगा। और ऑर्गेनाइजेशन की जो हम डेफिनेशन यहाँ भी कुछ हमने किया। ऑर्गेनाइजेशन बुनियादी तौर पे इंसान की आइडेंटिटी को शेप करती है और इस हवाले से हेल्प करती है। जैसा मैंने फ्रेमिंग के हवाले से कहा कि फ्रेमिंग का मतलब ये होता है कि फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक रेलेवेंसीज टू शॉर्ट व्हाट इज रेलेवेंट एंड व्हाट इज इररेलेवेंट। और मैनेजिंग जो है वो एक तो आपको डेफिनेशन मैंने यहाँ बताई है, एक डेफिनेशन आगे भी जाके बताऊँगा आपको। और ऑर्गेनाइजेशन से हमारी क्या मुराद है? दीज आर सिस्टमेटिकली अरेंज फ्रेमवर्क, systematically arranged framework relating people, things, knowledge and technologies and a design intended to achieve specific goals। It's a kind of a system and framework which are relating the people, things, data, knowledge, technologies. Why? Because they want to achieve the organization goal, some intended goal, to achieve some specific goals। Okay, so this is the kind of a organization that systematic arrangements, you can say that systematic arrangement। Managers are achieving those organizational goals, and managing is the process of communicating, coordinating and accomplishing action in the pursuit of the organizational objective while managing relationship with stakeholders, technologies and other artifacts both within as well as between organizations। तो टेक्नोलॉजीज आर्टिफैक्ट्स हैं, आर्टिफैक्ट्स आप समझ सकते हैं, बिल्डिंग है और ये सामने आपको सिंबल्स सब नजर आते हैं, ये सारे आर्टिफैक्ट्स के अंदर शुमार किए जाते हैं। ओके जी, तो अब हम आते हैं कि व्हाट डू मैनेजर्स डू। मैनेजर जो है वो क्या काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? तो मैनेजर्स क्लियरली मैनेज पीपल, दे इशू ऑर्डर्स, मेक सजेशन, फ्रेम एक्शंस in order to get things done, and all of these actions are discursive because they involve talking, texting, writing, planning। Discursive means कि it all based on the discourse कि इन तमाम चीज़ों को कम्युनिकेट किया जाए। मैनेजर का बुनियादी काम कम्युनिकेशन का होता है और इस कम्युनिकेशन के ज़रिए से वो मुख्तलिफ लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं। तो और ये जो डिस्कोर्स है उनका टॉकिंग का और टेक्स्टिंग का, राइटिंग का, प्लानिंग का, ये उनकी तमाम पूरे दिन की एक्टिविटी के ऊपर फैला हुआ। ठीक है, So this is the kind of a discourse where the manager are following in the organization and they are moving from one activity to the another activity। This is all the time they do। Okay जी, another way of describing managing, एक्चुअली मैनेजमेंट का जो वर्ड है वो इटालियन लैंग्वेज से आया है। इसकी इटमोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज उन्होंने आपकी बुक में डिस्कस भी की हैं। मैनेजियो विद मैनेजर मीनिंग टू हैंडल, ट्रेन। और तो बेसिकली ये टर्म जो है मैनेजमेंट की ये ज़्यादा
बाय 16th सेंचुरी के अंदर टेक्नोलॉजी ज़्यादा एंटर हुई है, और कुछ बातें उस वक्त बात हुई थी, लेकिन ज़्यादा कॉमन यूज़ जो है वो 19th सेंचुरी के अंदर किया गया। और जो रूट स्टेम वर्ड ऑर्गेनाइजेशन का है वो ग्रीक ऑर्गेनम से निकला है, इसका मतलब है विंड इंस्ट्रूमेंट। लेकिन ज़्यादा 1000 AD में हम देखें तो इसका ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड मैकेनिकल डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट के हवाले से किया जाता है, और लेट 14th सेंचुरी से ये टर्मिनोलॉजी यूजेज के अंदर है। और ऑर्गेनाइजेशंस आर देयरफॉर टूल्स डिजाइन्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है जी। और ये इस हवाले से यूज हुए में, ऑल्दो मैनेजर का बुनियादी वर्ड तो मैनुअल के हवाले से है, लेकिन स्ट्रेस जो है मैनेजर के वर्ड के ऊपर हैंडलिंग थिंग्स के लिए। मैनेजिंग इज लार्जली अ जॉब दैट इन्वॉल्व्स interpreting, understanding, directing, scheduling, communicating, leading, empowering, training, politicking, negotiating, encouraging, focusing, explaining, excusing, communicating. These are certain kind of the action word which we normally use with the work of the manager. बहरहाल ये कुछ मैनेजर के हवाले से बातें हैं। And managing refers to handling, directing, controlling, exercising skill, that's an executive ability, and the acts done by the person in charge of controlling and directing the affairs of an organization is a manager. Or managing entails जो है, it entails framing. So immaterial things जिसका मैनेजर यूज करते हैं उसमें coordinating, communicating and controlling, और बहुत सारे मैनेजर जो हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, करना होता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। इन मटेरियल थिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है, टैबलेट्स कंप्यूटर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है मैनेजमेंट के हवाले से। और ग्रेट मैनेजर्स आर नॉट ओनली द टेक्निकल गुड टेक्नीशियन एंड टॉकर, बट दे आर ऑल्सो एक्सपर्ट ऑफ अ सोशल रिलेशनशिप्स between themselves and other, as well as between themselves, others and things such as plan, document and data analysis. So managing is basically is about smooth running and handling and controlling of the organization. So it's a kind of a relational term. Or managing in terms of everyday usage mean handling, directing, controlling, exercising skill in executive ability. That's a term managing mean. जिसमें आपके सामने डेफिनेशन लिखी भी गई है। एंड द एक्ट्स डन बाय द पर्सन इन चार्ज ऑफ कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग द अफेयर्स ऑफ द अदर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वो मैनेजर बनता है। और मैनेजर नॉर्मली स्ट्राइव टू बी रैशनल। एंड what do we mean by rational? Being rational means systematic application of various techniques to achieve some given end or a goal. गोल्स को अचीव करने के लिए जो सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स उसको हम कहते हैं रैशनल। और तो दे मैनेजर जो होते हैं व्हेन दे आर इन द एक्शन, तो दे ट्राई टू कीप देयर एक्शन रैशनल, बिकॉज ताकि उनकी जो परसेप्शन है वो बीइंग रैशनली कंसिडर की जाए। इसकी वजह से वो रैशनैलिटी के हवाले से देखते हैं इन चीज़ों को। और rational action is those action that is produced according to some rules action, but that is not random नहीं है। तो इस हवाले से रैशनल एक्शन को रखे जाते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज मैनेजिंग और मैनेजर के हवाले से मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, कुछ डेफिनेशन और मैनेजर का रोल के हवाले से मैंने बात की आपसे। अब मैं बात करता हूँ आपसे ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक कैसे होंगे, एक रैशनल ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन अपने पर्पस के हवाले से डिफर करती हैं। हॉस्पिटल का अपना काम है, यूनिवर्सिटीज़ का अपना काम है, बैंक्स का अपना काम है, इसी तरह गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का अपना काम है, और तो आप मुख्तलिफ पुलिस का अपना काम है। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ पर्पस से पहचानी जाती हैं। तो इस हवाले से ऑर्गेनाइजेशन हैव अ पर्पस विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड गोल, एंड इट हैज सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। एंड द फर्स्ट इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एक्शन आर consciously shaped by the organization design, expressed through its routine, practices and specific structures. जो उनका पर्पस है वो उनके रूटीन स्ट्रक्चर से जाहिर हो रहा होता है। यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर से जाहिर हो रहा होता है, पुलिस के स्ट्रक्चर से जाहिर हो रहा होता है, उनके यूनिफॉर्म वगैरह से भी जाहिर हो रहा होता है।
एक स्ट्रक्चर होगा एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो उसके पर्पस को डिटरमिन कर रहा होगा। एक हियरार्की होगी, इस तरह की आगे भी इसका कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस करते हैं। एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट time and motionless. Changes will occur as organization revise their practices in the light of their experience. Always changing. Third is organization will be future oriented as the members of the organization seek to achieve a desired and planned future. Often this future will be expressed in terms of the key performance indicator. जो उनके key performance indicator हैं मुख्तलिफ लोगों के जॉब के हवाले से वो डिटरमिन कर रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है जॉब के हवाले से। Then the organization will employ hierarchy and division of labor. और वो hierarchy और division of labor का मुराद है कि मुख्तलिफ किस्म के रोल्स को डिवाइड किया जाता है कि किसका रोल होगा। आर्मी जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप hierarchy देखते हैं, जर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, कर्नल हैं, मेजर हैं, कैप्टन हैं, फिर नीचे सूबेदार, मेजर, सूबेदार, हवलदार, ये सारे मुख्तलिफ किस्म के रोल्स हैं। hierarchy है, एक चेन ऑफ कमांड बनाई जाती है ताकि मुख्तलिफ रोल्स को डिवाइड किया जाए। वो जगहों के ऊपर एक hierarchy, एक सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कमांड एंड कंट्रोल बनाया जाता है। और कुछ जगहों के ऊपर ये मैंने आपको एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बताया, कुछ जगहों के ऊपर डिफरेंट ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर भी बनाए जाते हैं। Then responsibilities are defined for actions, roles and responsibility that are revised in the light of experience and future actions unfold. क्या किसकी क्या ऑफिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें बताया जाता है। Then future action unfold the जो भी प्रेफरेंस होगी ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर एक्शन के हवाले से, वैसे स्ट्रक्चर, वैसे रोल्स, वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इमर्ज होती रहती हैं। और उसी केस में कभी मैनेजरियल रिफॉर्म और ऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्म भी आती हैं, इसके नतीजे में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चरिंग की जाती है। तो तमाम इन ऑर्गेनाइजेशन के रोल्स, रिलेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के जो पीछे बात है वो रूल्स की बात है। ऑर्गेनाइजेशन आर बिल्ड ऑन द रूल्स एंड रूल्स प्रोवाइड फॉर रैशनैलिटी। और रूल टेल्स कि किस तरह क्या चीज़ किस तरह होती रही है पास्ट में और कैसे हाउ दे शुड बी डन इन द फ्यूचर। तो इफ ऑर्गेनाइजेशन फॉलो रूल्स इट इज थॉट दैट दे विल मिनिमाइज द अपॉर्चुनिटी फॉर एरर एंड द रूल्स प्रोटेक्ट ऑर्गेनाइजेशन मेंबर, दे इंश्योर रैशनैलिटी। और देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रूल हम कह सकते हैं। एक है कॉन्स्टिट्यूटिव रूल, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव ऑफ एन एक्टिविटी। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूटिव रूल हैं, जिस तरह अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल के अंदर जो कि कॉन्स्टिट्यूटिव रूल है उसका गोल करने का, वो ये है कि आप नेट के अंदर बॉल फेंकेंगे तो ही गोल कंसिडर होगा। तो ये रूल है कि अगर गोल के केस में तभी होगा जब आप नेट में बॉल फेंकेंगे। और अगर आप सेल्स को ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर सेल्स को क्लोज करेंगे तभी सेल जो होगी वो कहलाएगी आपकी कंप्लीट, अदरवाइज वो सेल कंप्लीट नहीं। और कुछ हैं प्रोफेशनल रूल, जिस तरह आप गेम खेल रहे हैं फुटबॉल की तो आप चाहेंगे कि आपको येलो कार्ड ना मिले, रेड कार्ड ना मिले, और फॉलिंग और बीइंग कर्टियस विद द कस्टमर, कुछ आपके प्रोफेशनल रूल होते हैं और कुछ मेन रूल जिसको हम कॉन्स्टिट्यूटिव रूल कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल डिफाइंस द पॉइंट ऑफ एक्टिविटी, पॉइंट ऑफ एक्टिविटी की जो कि एक्शन हो रहा है, जो कि काम हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल उसको डिफाइन करते हैं। और प्रोफेशनल रूल डिफाइन हाउ प्रेफरेबली द एक्टिविटी शुड बी टेकन, किस तरह की जाए। हाउ जो है वो प्रोफेशनल रूल डिफाइन करते हैं और जो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल जो है वो उसको डिफाइन करते हैं। तो ब्रंसन जो है लीडिंग यूरोपियन मैनेजमेंट थिंकर हैं, उन्होंने सजेस्ट किया है कि ऑर्गेनाइजेशंस आर गाइडेड इन देयर एक्शन बाय द फॉर्मल इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन बट आल्सो इनफॉर्मल रूल। फॉर्मल रूल्स भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इनफॉर्मल रूल्स भी होते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग और इमिटेशन विल आल्सो प्ले अ रोल। और एक्सपीरियंस हमें ये बताता है किस तरीके से हाउ टू शॉर्टकट रूल दैट वी फाइंड इनकन्वीनियंट। और मसलन आप जब शुरू में ड्राइविंग करना सीखते हैं तो ड्राइविंग आप किसी रूल्स के मुताबिक करते हैं, तो जैसे जब ड्राइविंग में माहिर हो जाते हैं और आपको समझ में आता है किस तरीके से हम शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, कहाँ सिग्नल्स के हवाले से कर सकते हैं, तो वो आप एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर उन रूल्स को कभी कभार ओवरलुक भी कर जाते हैं या रूल्स को कभी कभार जो है वो वायलेट भी कर जाते हैं। तो बाहर लेकिन अगर आप रूल को वायलेट करें और साथ ही ट्रैफिक सार्जेंट आपको देख ले तो साथ ही आपको एक टिकट भी मिल जाता है जिसको आपको भरना पड़ता है। या कुछ स्पीड कैमरा आपकी स्पीड को मेजर कर रहे हो और आपको लगे स्पीड कैमरा यहाँ नहीं है,
डिफरेंट लोग कभी कभार करते हैं कि स्पीड कैमरे की एक्सेस यहाँ तक है, हम वहाँ से स्पीड कर लेंगे, कुछ लोग कर रहे होते हैं रूल्स के हवाले से। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ह्यूज रिपोजिटरीज ऑफ रूल्स होते हैं और हर रूल का एक अपना मकसद होता है। और जैसे टाइम टेबलिंग है एजुकेशन के हवाले से, और इस तरह रेस्टोरेंट के हवाले से मेन्यूज़ हैं, और इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन जो फैक्ट्रीज हैं उनके भी अपने मैस प्रोडक्शन के अपने रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन हैं। और तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन की नेचर पे डिपेंड करता है किस तरह के रूल्स बनाएंगे। प्रिजन के रूल्स कुछ और होंगे, स्कूल्स के रूल कुछ और होंगे। सो हम इस हवाले से जिन रूल्स के बात कर रहे हैं उनमें फॉर्मल रूल्स हैं, प्रोफेशनल रूल्स हैं, एंड लीगल रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, और इनफॉर्मल सोशल रूल्स हैं। तो इस हवाले से मैं बात करता हूँ आपसे फॉर्मल रूल्स के हवाले से। जो फॉर्मल रूल्स हैं, दैट लाइक यू विल अराइव एट अ सर्टेन टाइम, लीव एट अ सर्टेन टाइम, एंड ये एक रूल है, एक फॉर्मल रूल है। लोग फॉर्मल रूल के हवाले से भी, रूल्स फ्लूइड होते हैं, रूल्स तब्दील भी हो जाते हैं। तो हम लोगों को एक ही टाइम पे बुलाना है, तो हम लोगों को एक टाइम पे जाना है, जिसकी वजह से ट्रैफिक क्लॉग हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। आए गए रूल ये कोई बहुत बेहतर रूल है या फिर रूल को तब्दील करना चाहिए। देन देयर आर प्रोफेशनल रूल्स। These are the rules that you have internalized perhaps as a result of a professional accreditation achieved in with your higher education. आप प्रोफेशनल ह्यूमन रिसोर्स सोसाइटी फॉर प्रोफेशनल ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट बन जाते हैं, और वहाँ प्रोफेशनल रूल्स और एक्रेडिटेशन की वजह से जो आपको मिलते हैं वो आपका पार्ट एंड पार्सल बन जाते हैं, आपकी हिस्सा बन जाते हैं आपकी ज़िंदगी का। तो फिर जब आप HR की प्रैक्टिस करते हैं तो उन तमाम प्रोफेशनल रूल्स का ख्याल रखते हैं। Which rules you should you follow? आपका अगर sometimes the organization that employ you will require thing of you that simply cannot be done, and when is required तो cannot be done। जो कि आपके प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है वो कह रही है कि HR इस तरह होना चाहिए, जबकि ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ और हैं। इस केस के अंदर आप क्या करेंगे? Which rules should you follow? प्रोफेशनल रूल्स और अगर या फिर ऑर्गेनाइजेशन रूल क्लैश आ जाते हैं। Then there are legal rule, and these maybe are the directives that are explicit, compulsory, and have a clear source and target within the organization. मसलन कि अगर आपको रूल बना दिया जाए that you shall not use the organization as resources for the personal purposes, लेकिन इसको भी बड़ा डिफिकल्ट है इस रूल को भी कुछ जगहों पे इम्प्लीमेंट करना। इस सिंपल से रूल को लोग पर्सनल कॉल्स अटेंड नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल टेलीफोन्स के ऊपर, क्या अगर ये इस तरह का रूल बनाया जाए तो क्या ये रूल की वायलेशन हो जाएगी। देन देयर आर स्टैंडर्ड्स, और स्टैंडर्ड से मुराद है कि ऑर्गेनाइजेशन के एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होते हैं जिसके मुताबिक वो उन कामों को करते हैं। ये भी किस्म के एक्सप्लिसिट रूल हैं, एक स्टैंडर्ड सेटिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन में, और इस तरह के आप रूल्स बना सकते हैं। करेक्ट लाइटिंग के रूल्स हैं, प्लम्बिंग के रूल्स हैं, और सेफ्टी के रूल्स हैं, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हैं। तो viral standards are the powerful way through which we can influence the human behavior, and आपके ख्याल में यूनिवर्सिटी में कौन से ऐसे रूल हैं जो कि आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं? क्या यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे रूल हैं? अब ये रूल जो है ड्यूरिंग पैंडेमिक आपको मास्क पहनने हैं, हाथ सैनिटाइज करने हैं, ये भी एक रूल्स हैं जो कि एक स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स फॉर SOP, स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए जाते हैं किस तरह क्लासेस कंडक्ट होंगे अंडर द पैंडेमिक। Then there are informal social rules, or informal social rules, for example, about the clothing. Men will wear jacket, shirts, and trouser, and women will wear shalwar kameez and shirts, and बाहर के मुल्कों में तो स्कर्ट्स भी पहनी जाती, और हमारे यहाँ इस तरह क्रॉस ड्रेसिंग नहीं होती। ये भी एक इनफॉर्मल सोशल रूल है। मर्द मर्दों वाले कपड़े पहनते हैं, औरत औरतों वाले कपड़े पहनते हैं। बहुत कम एक औरतें सूट में पहनता है, ज़्यादातर मर्द जो है वो सूट पहनते हैं। औरतें जो कोट तो पहन लेती हैं लेकिन सूट पहन नहीं देखा गया। एनीहाउ, तो ये ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट जो है वो एक सिस्टमैटिक रैशनल अप्रोचेज हैं, इनको अडॉप्ट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सकें।
Most organizations strive to be rational, that it is consciously designed to achieve specific ends in an ordered and systematic way, such as जो भी उनका है, such as फिटनेस है, पनिशमेंट है, ट्रेनिंग है, और जो मिलिट्री के अंदर जिस तरह ये गोल्स रखे जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग मेंबर फिट हों, ट्रेंड हों कॉम्बैट करने के लिए। और हायरार्की जो है वो एक कॉमन सा फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन में नजर आता है आपको, कि दैट इन्वॉल्व डेलीगेशन एंड अथॉरिटी विद कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, एंड दैट इज सेंट्रलाइज्ड इन द टॉप मैनेजमेंट टीम। और इसी तरह मुख्तलिफ रोल्स दिए जाते हैं और मुख्तलिफ लेवल के ऊपर मुख्तलिफ लेवल की अथॉरिटी जो है वो दी जाती है। तो दीज आर द सर्टेन रूल्स फॉर द ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। ओके जी, कैरेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन एक उनकी एक एम्बेडेड स्ट्रक्चरल रियलिटी एग्जिस्ट करती है irrespective of their members, and people come and people may go, but the organization retain their identity which is separate from the individual who comprise it। and इस तरह आप जिस एजुकेशन सिस्टम के अंदर आए हैं, ये एक एजुकेशन सिस्टम अपनी एक आइडेंटिटी रखता है। पंजाब यूनिवर्सिटी की एक अपनी आइडेंटिटी है। हर साल एक नए स्टूडेंट आते हैं, इसके अंदर पढ़ते हैं, नए आ जाते हैं, टीचर भी आते हैं, टीचर का थोड़ा ड्यूरेशन लॉन्ग होता है लेकिन वो भी चले जाते हैं आफ्टर। तो बहरहाल यूनिवर्सिटी एक डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है। अगर आप देखें यूनिवर्सिटी 1884 में बनाई, तो उसकी आइडेंटिटी क्या थी और अब इस ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी क्या है। ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी आइडेंटिटी के अंदर होती है, अपनी आइडेंटिटीज़ को एक लॉन्ग पीरियड तक के लिए मेंटेन करती है, और जो इंडिविजुअल्स हैं वो उसके अंदर आते जाते रहते हैं। ओके जी, जिस तरह अगर आप देखें कि ट्रेडिशनली किस तरह की फैकल्टी ऑफ आर्ट, फैकल्टी ऑफ साइंस हुआ करती थी, अब देखें कितनी सारी फैकल्टीज हैं, कितनी डिफरेंट डिसिप्लिन हैं, क्योंकि अगर पुराने में देखेंगे तो उस तरह के डिसिप्लिन आपको नजर नहीं आएंगे। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी जो है वो बरकरार रखती है। थ्रू आउट द ईयर पंजाब यूनिवर्सिटी की एक आइडेंटिटी बरकरार है, और वो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी एक बेसिक आइडेंटिटी रखती है। ओके जी, तो ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिटी के हवाले से हैव डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज। कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफन स्ट्राइव टू शेप देयर ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिटीज। जिस तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो उतनी की आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे जो कि कॉर्पोरेट मिशन के साथ अलाइन करता होगा। और नोशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिटी का मतलब ये भी है कि ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बाउंड्रीज भी होती हैं, और दे हैव अ सर्टेन क्लियर बाउंड्रीज, अ लार्ज डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी एंड डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक which differentiate one organization from the other organization। कहने का बुनियादी मकसद ये है कि एक किस्म की ऑर्गेनाइजेशन की जो उसकी लीगल पर्सनैलिटी होती है ना, जिसके अंदर उसके लोगोज होते हैं, उसके साइन होते हैं, उसके सिंबल होते हैं, और जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी को कंप्राइज करते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपनी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से फ़र्क महसूस हो। तो Brunson may suggest that identity, whether attached to the qualifier of either organization or individual, उसका बुनियादी जो नोशन था ब्रंसन का आइडेंटिटी का कि वो रिलेशनल है। दैट मीन्स के डिस्टिंग्विशिंग समथिंग मीन्स denoting a difference from something else just as much as it may be an information of likeness and similarity with others। यानी कहने का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी उसको दूसरे लोगों से फ़र्क करती है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक कॉमन भी होते हैं, लेकिन कुछ मामला होते हैं जिसकी वजह से उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी जो है एग्जिस्ट करती है, और वो फ़र्क होती है इस वजह से। देन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हम एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, और इंस्टीट्यूशंस ऐसे पैटर्न हैं, रिपीटेड पैटर्न है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। तो अगर हम इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन करें अकॉर्डिंग टू द स्कॉट, जो कि एक मेन स्कॉलर है इंस्टीट्यूशन के अंदर, इंस्टीट्यूशन थ्योरी के अंदर, दैट इंस्टीट्यूशंस आर सोशल स्ट्रक्चर दैट परसिस्ट एंड एंड्योर, and in doing so strongly shape the way that people, especially professionals in organization, do the thing they do. So institutions have been conceptualized as being made up of various elements, or if the emphasis on the cognitive element, then we tend to talk of common mental maps or archetypes,
ways of thinking, speaking, and acting among professionals. If the emphasis is on more normative element, then we focus on the informal rules and expectation that surround an institution, while regulative element usually refer to either state regulation, often coercive in kind, prohibiting certain things, or more subtle regulation by institutionalized standards, such as ISO 9000. तो these आपको जो मैंने 3 एलिमेंट बताए, जो स्पॉट ने बताए, कॉग्निटिव एलिमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, फिर उसका जो है नॉर्मेटिव एलिमेंट, और फिर रेगुलेटिव एलिमेंट। तो ये these together with associated activities and the resources provide stability and meaning in our sense of the organization of work, business and everyday life. So एक इंस्टीट्यूशन जो है के हवाले से जब हम बात करते हैं, तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बात करते हैं, तो इंस्टीट्यूशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन तब इंस्टीट्यूशन बनती है जब उनके अंदर ये 3 एलिमेंट हैं वो आ जाते हैं। कौन कौन से? कॉग्निटिव एलिमेंट हो उसका, और उसका नॉर्मेटिव एलिमेंट हो, और फिर उसका एक रेगुलेटिव एलिमेंट। एनी हाउ, ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम एक हैबिचुअल एक्शन होता है जो कि बार बार रिपीट होता है। किसी भी सोसाइटी के अंदर इंस्टीट्यूशन तभी बनते हैं जब एक एक्टिविटी को वो बार बार परफॉर्म कर रहे हों, और ऑर्गेनाइजेशन भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज होती रहती हैं। Some organizations are often referred to as institutional entrepreneurs and may be either particular individual or organization. जिस तरह आप एग्जांपल देख सकते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इंस्टीट्यूशनल, पूरे इंस्टीट्यूशंस को भी चेंज कर देती हैं, उनका वे ऑफ डूइंग द थिंग्स चेंज हो जाता है। तो ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं। तो बहरहाल ये कुछ बातें ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन पर डिसेंट्रलाइज होती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइज होती हैं, कुछ लोग की कोऑर्डिनेशन जो है सेंटर से हो रही होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन जो है वो आप ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इस तरह का बना देते हैं कि डिसेंट्रलाइज हो जाती है। सो लेकिन ये भी देखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर कभी कभार बात कुछ और कर रहे होते हैं, कह कुछ और रहे होते हैं, और हो कुछ और रहा होता है। और इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? फर्स्ट, दे आर क्रिएटिंग कवर फॉर व्हाट दे रियली वांट टू डू। जो वो करना चाह रहे हैं उसके ऊपर कवर प्रोवाइड करते हैं, and sometimes they may be quite wrong in what they want to do, and their subordinates or those on the margins are trying to tell them. So because जो वो कर रहे होते हैं उनके सबॉर्डिनेट्स कहते हैं कि जी आप ये जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे, लेकिन वो कहते हैं कि जी हम कर रहे हैं ठीक क्योंकि हम ज़्यादा एक्शन के करीब हैं। इस वजह से भी मैनेजर कभी कभार जो कि कहते हैं आप वो करते हैं, उसके अंदर भी फ़र्क आ सकता है। तो बहरहाल जो कि स्मार्ट मैनेजर नो दैट देयर एक्शन एंड दोज ऑफ द पीपल अराउंड देम शेप देयर प्रेफरेंसेस, और वो चाहते हैं कि इन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कोई काइंड ऑफ फैंटेसी ना क्रिएट हो जाए उनके सबॉर्डिनेट्स में, कि वो फैंटेसाइज करना शुरू कर दें कि मैनेजर्स क्या कर रहे हैं इसके हवाले से। और तो एक हमारी स्टडीज़ हैं क्रिटिकल मैनेजमेंट स्टडी, जो कि इन्हीं बातों के ऊपर फोकस करती हैं, किस तरह मैनेजर्स जो हैं उनके प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज किया जाता है कि किस तरह क्या क्या बेसिक अजम्पशन या मेटाफर्स होते हैं जो कि मैनेजर यूज़ कर रहे होते हैं। मैनेजर जो है टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ द मैनेजमेंट जनरली। टॉप मैनेजमेंट है, एक मिडिल मैनेजमेंट, एक लोअर लेवल मैनेजमेंट है। और टॉप मैनेजमेंट कंप्राइज द सीनियर एग्जीक्यूटिव्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन and the people who frame sense making, who get set strategy, direction and the purpose। जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप कह सकते हैं कि टॉप मैनेजमेंट है। और अगर यूनिवर्सिटी के बारे में देखा जाए तो सेनेट है, सिंडिकेट है, ये टॉप मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। और टॉप मैनेजमेंट टीम मैनेजर वांट टू बी एबल टू इम्प्लीमेंट डिसीजन, कि इस तरह के डिसीजन किए जाते हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस, गोल्स और जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं इनके अंदर एक अलाइनमेंट क्रिएट हो। तो इस हवाले से टॉप मैनेजमेंट ये रोल अपना परफॉर्म करती है। तो ये कुछ बातें मैंने आपसे डिस्कशन की इस रिकॉर्डिंग में अबाउट द मैनेजिंग मैनेजर और ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपसे सेंस मेकिंग के हवाले से डिस्कशन करूँगा। ओके जी, बाय बाय।